how are you all? I hope you all are doing good. Today we will study rocks and minerals. Ready, steady, start. Following are some jumbled words related to rocks. Rearrange them and get the names of famous rocks used around you. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: rocks and minerals. Rocks. Our earth is made up of soil and rocks. Rocks are made up of minerals. Minerals are naturally occurring substances with fixed composition. They are formed due to natural processes taking place within the earth. A rock may contain one or more minerals. Different types of rocks contain different quantity of minerals. देखिए हमारा जो अर्थ है वो सॉइल एंड रॉक से बना है, ठीक है, और रॉक्स में कुछ मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स एक टाइप के भी हो सकते हैं और मिनरल्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, रॉक्स में. तो जो रॉक्स हैं वो आपके अर्थ में हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है. रॉक्स आप नेचुरली प्रोसेस होता है, नेचर का ही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू रॉक्स बनते हैं, ठीक है. तो चलिए आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स डिफर इन द साइज, शेप, टेक्सचर, color, composition and formation. Based on the process of formation and composition, there are three main types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, देखिए रॉक्स जो होते हैं अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, टेक्सचर, कलर सब डिफरेंट होता है, ठीक है. उसकी कॉम्पोजिशन और फॉर्मेशन अलग होती है. रॉक्स थ्री टाइप्स के होते हैं: igneous, sedimentary and metamorphic. Information literacy. People who study rocks are called geologists and the field of study which are engaged in is called geology. वो लोग जो कि रॉक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्हें हम कहते हैं जियोलॉजिस्ट, और वो स्टडी जो कि हमें रॉक्स की पढ़ाई बताती है उसे हम कहते हैं जियोलॉजी. ओके. Igneous rocks. Rocks formed by the solidification of molten rocks material are called igneous rocks. Minerals are found in liquid state deep inside the earth due to excessive heat. These minerals in liquid form the cold magma. When the volcano erupts, the magma that comes out of the earth's surface is called lava. With time, lava cools down and solidifies to form igneous rocks. The word igneous comes from the Latin word ignis meaning fire. Okay, देखिए igneous rocks जो होते हैं वो molten rocks होते हैं. एक तरीके से वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो उसके अंदर से मैग्मा मतलब कि जो हीट होती है उसके अंदर, ठीक है, वो वोल्केनो से जब बाहर निकल के आती है उसे हम लावा बोलते हैं, और जब वो कूल डाउन होते हैं तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं igneous rocks. ओके. द टाइप ऑफ igneous rocks form depend upon the kind of minerals present in the lava. Granite, pumica, obsidian and basalt are some rocks that are formed in this way. देखिए igneous rocks के भी टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का लावा जो है वो मिनरल्स किस टाइप के लेकर के आ रहा है, तो वो डिपेंड उस चीज़ पे करता है. तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, प्यूमिका, ऑब्सीडियन एंड बेसल्ट. Synthesizing information. Eruption of volcano that causes the magma to come out, which further result in the formation of igneous rocks. The Deccan Trap is one of the world's longest volcanic area where igneous rocks are found in large numbers. Okay. इरप्शन आपने जैसे कि अभी बताया वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके अंदर से जो है लावा बाहर आता है और फिर वो कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक्स बनते हैं, ठीक है. तो डेक्कन ट्रैप जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनिक एरिया है जहां पर इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं. ओके. अब यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स ये रहे, ठीक है. अब वॉल्केनिक इरप्शन है, मैग्मा है, मैग्मा बाहर आया है अर्थ पे, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हुई है मैग्मा की एंड देन इट इज फॉर्मिंग इग्नियस रॉक्स. ग्रेनाइट. Granite is a hard rock formed by the slow cooling of molten rocks below the earth's surface. Granite is found in various colors: gray, black, pink, green, etc. The color depends on the amount of constituent mineral. Granite is composed of the three main minerals: mica, feldspar and quartz.
It is commonly used for constructing buildings, as flooring tiles and for making statues. देखिए ग्रेनाइट जो है ये हार्ड रॉक है, ये स्लोली जो कि आपका मैग्मा जो है जो स्लोली धीरे धीरे ठंडा होता है तब जाके ग्रेनाइट फॉर्म होता है। ठीक है, ग्रेनाइट के अलग अलग कलर्स होते हैं, ग्रे, ब्लैक, पिंक, ग्रीन, इन कलर्स में ये पाया जाता है। इसके जो कलर है वो डिपेंड करते हैं मिनरल्स पे। ठीक है, ग्रेनाइट 3 मेन मिनरल्स होते हैं ग्रेनाइट पे, जिनका नाम है मीका, फेल्ड्स्पार एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, अब ग्रेनाइट का यूज़, ये पत्थर होता है, इसका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग में। ठीक है, आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं या फिर स्टैचूज बना सकते हैं। प्यूमिका इज अ लाइट रॉक फॉर्म्ड बाय द क्विक कूलिंग ऑफ frothy lava on the earth's surface. It is porous of light because of the gases in the fourth remain trapped inside it and it cools. It is used as a body scrubber, to polish floor and furniture and by dentist to polish teeth. Okay, प्यूमिका जो रॉक होता है ये सबसे पहले जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, लावा जो बाहर आता है जो सबसे पहले कूल डाउन होता है उसे हम प्यूमिका बोलते हैं। प्यूमिका जो रॉक है ये यूज़ किया जाता है पॉलिश करने के लिए। ठीक है, आप फ्लोर्स बना रहे हैं तो पॉलिश करने हैं, डेंटिस्ट जो है वो टीथ पॉलिश करने के लिए इस टाइप के रॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, Visual literacy. People often use a pumica stone at home to scrub their feet. लोग जो हैं वो अपने घरों में प्यूमिका स्टोन का यूज करते हैं अपनी फीट को क्लीन करने के लिए। ओके, Obsidian. It is formed by the rapid cooling of lava above the earth's surface. Its edges are generally sharp. Obsidian is also called volcanic glass as it is smooth and glassy. It is generally black in color. However, it can also be brown or green. It is used in surgeries and for ornamental purposes. देखिए ऑब्सीडियन जो है वो लावा के रैपिड कूलिंग की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी एजेस जो होती हैं वो जनरली शार्प होती हैं। ये इसको हम वॉल्केनिक ग्लास भी बोलते हैं क्योंकि ये स्मूथ और ग्लासी होता है। ये नॉर्मली ब्लैक कलर में पाया जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये ग्रीन और ब्राउन कलर में भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसे सर्जरीज के लिए या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। Basalt is formed when lava cools rapidly on the earth's surface. It is fine grained, dark and dense in appearance. It has sharp edges and is used for construction of roads. Okay, देखिए बेसल्ट अगेन रैपिड कूलिंग होती है लावा की अर्थ सरफेस पे तब ये फॉर्म होता है। ये फाइन ग्रेन्ड होता है, डार्क डेंस होता है अपीयरेंस में। ठीक है, इसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए। नीचे देख सकते हैं आप बताए गए हैं कौन सा रॉक किस तरीके का दिखता है, ग्रेनाइट, प्यूमिका, ऑब्सीडियन एंड बेसल्ट। Sedimentary rocks. Rocks formed by the deposition of sediments in layers are called sedimentary rocks. Wind, water and temperature changes act on rocks on the earth's surface and break them into smaller pieces. These small pieces of rocks turns into pebbles, gravel, sand and clay and are called sediments. They are carried along with river and streams to new places where they pile up to form flat layers. Over time the layers of sediments get compressed फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे फॉर्म होते हैं। ओके, वाटर, विंड के थ्रू जब रॉक्स उड़ते हैं, वाटर के थ्रू जब वो फ्लो करके जाते हैं तो जो वो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो छोटे छोटे पेबल्स हैं वो काफी टाइम के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स अलोंग विद sediments the dead remains of animals and plants to settle down, leaving a mark or impression in the rock which is known as a fossil. They are mostly formed under water. Sandstone, shale, limestone and conglomerate are some sedimentary rocks. 70% of the rocks on the earth are sedimentary rocks. Okay, देखिए कई बार क्या होता है आपके रॉक्स के साथ साथ जो स्मॉल पेबल्स हैं उनके साथ डेड डिकेइंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स भी फॉलो करते हैं और वो उनके साथ मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो फॉसिल बन जाते हैं और उनका निशान रॉक्स पे रह जाता है। ठीक है, अब ये मोस्टली जो अंडर वाटर होता है ना
एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है, ठीक है। सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन और कैंग्लोमेरेट ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। 70% जो रॉक्स हैं धरती पे वो सब क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ओके। सेडिमेंटेशन, rivers bring sediment to the ocean. These sediments collect on the ocean floor. Okay, sediments मतलब के dust, स्मॉल रॉक्स, पेबल्स, ये जो सारी सैंड, सिल्ट, ये सब हो गया, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो आपकी रिवर्स है वो सेडिमेंट्स को ओशन तक लेकर जाती हैं और फिर वो सेडिमेंट ओशन फ्लोर पर जाके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओवर टाइम एडिशनल लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आर एडेड ओवर द ओल्डर सेडिमेंट्स। तो टाइम के साथ साथ जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ सेडिमेंट्स आके फ्लोर पे टच हो गई हैं, उसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लेयर्स बनती जाती हैं, ठीक है। Addition of more layers and further compaction leads to the squeezing of water from the lower layers and hardening them, ठीक है। क्योंकि एक एक लेयर जो है ऐड होती जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर लेवल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो लोअर लेवल है वो हार्ड रॉक में कन्वर्ट होता जाता है। ड्यू टू सम इंटरनल एक्टिविटी ओशन फ्लोर इज पुश्ड अपवर्ड एंड द रॉक्स आर एक्सपोज्ड, ठीक है। इंटरनल एक्टिविटी जो हो रही होती है उसके थ्रू जो ओशन लेवल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और रॉक्स जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। ओके। Sandstone. Sandstone is a common sedimentary rock. It is mainly consists of small grains of minerals and is made of sand particles deposited close together. Sandstone may be yellow, pink, brown and red depending upon the mineral present in it. Sandstone takes its color from the cementing materials. It is often used as building stone. The Agra fort is made of red sandstone. Okay. सैंडस्टोन जो है वो एक कॉमन सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। इसमें कुछ ग्रेन्स मिले हुए होते हैं, मिनरल्स जैसे होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से या फिर दो से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ स्मॉल ग्रेन्स होते हैं मिनरल्स के, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ओके। सैंडस्टोन के जो कलर होते हैं वो येलो, पिंक, ब्राउन या फिर रेड होते हैं। आगरा फोर्ट जो है वो सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, ठीक है। Shale. It is a rock formed from hardened clay. It breaks apart in flat sections as it is made up of thin layers. It exists in various colors like black, red and green. It is used for making bricks, tiles and cement. देखिए shale stone जो है ये हार्डन क्ले की तरह होता है, ठीक है। ये फ्लैट सेक्शंस को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। अब इसके कलर्स जो होते हैं वो ब्लैक, रेड, ग्रीन होते हैं। ये ब्रिक्स या टाइल्स या सीमेंट इन सबको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन. लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ मिनरल कॉल्ड कैल्साइट एंड बिट्स ऑफ एनिमल्स shells. It is mostly grey or white in color. Limestone is used for whitewashing a house. Chalk is form of limestone. Limestone is also used of making glass, brick and cement. Okay, limestone जो है ये कुछ मिनरल से बना है जिनका नाम है कैल्साइट एंड बिट्स या फिर बिट्स ऑफ एनिमल शेल्स. ठीक है, ये वाइट या ग्रे कलर में ही मोस्टली पाया जाता है. इसका यूज किया जाता है हाउसेस को वाइट वॉश करने के लिए या फिर चॉक्स बनते हैं इससे. ठीक है. कॉन्ग्लोमेरेट. Conglomerate rocks are rounded pebbles and gravels cemented together into a hard stony mass. It has coarse grains and is found in shades of orange and grey. It is used for construction purposes and polish ornaments. देखिए जो आपका कॉन्ग्लोमेरेट रॉक है ये ऑरेंज और ग्रे शेप कलर में पाया जाता है. इसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए या फिर ऑर्नामेंट को पॉलिश करने के लिए. ओके, नीचे देखिए सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट ये बताए गए हैं किस टाइप के होते हैं. क्रेजी फॉर एक्टिविटी. यस, collect different types of rocks from your school and around your house. Wash them properly and observe them using a magnifying lens. How are they different or similar? ये आप खुद करेंगे. Metamorphic rocks. These are the rocks which once either igneous or sedimentary. Powerful forces like heat and pressure brought
about changes in these rocks. The great heat and the pressure under the earth causes change in igneous or sedimentary rocks. In some rocks the minerals are broken into small ones. Okay, देखिए ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ये वो रॉक्स होते हैं जो कि एक टाइम पे इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करते थे. जब ये चेंज होते हैं तो ये कुछ स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं. हीट की वजह से, प्रेशर होने की वजह से, विंड अर्थ पे जो प्रेशर होता है हीट का या फिर विंड का जो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर इग्नियस रॉक्स हैं वो कि कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ठीक है, अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये सीमेंटिक मटेरियल्स होते हैं. ठीक है, दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. स्लेट, मार्बल, गिनीज एंड क्वार्ट्जाइट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स. देखिए इसके एग्जांपल्स बताए गए हैं. स्लेट, मार्बल, गिनीज एंड क्वार्ट्जाइट, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं. स्लेट, when the sedimentary rock shell undergoes metamorphosis it forms slate. It is dark in color. It splits easily into thin layers. It is used as tiles for making roofs, blackboard, slates and flooring. देखिए स्लेट जो होता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि मेटामॉर्फिक्स के अंदर जाते हैं. ठीक है, इन्हें हम इनसे क्या होती है, स्लेट बनती है. स्लेट जो होती है वो लेयर होती है जिसपे थोड़े थोड़े जो क्रैक्स होते हैं इजीली वो पार्ट एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, पार्ट हो सकती है. ठीक है, इन्हें यूज किया जाता है रूफ, ब्लैकबोर्ड, स्लेट या फिर फ्लोरिंग के लिए. ओके, मार्बल. Marble is also a metamorphosed sedimentary rocks formed from limestone. It is used in flooring for making statues, floor and for ornamental used. Marbles जो होते हैं ये भी आपके metamorphosed sedimentary rocks होते हैं जो कि limestone से बनते हैं. इन्हें यूज किया जाता है फ्लोरिंग के लिए या फिर ornamentals बनाने के लिए. Gneiss. Gneiss is formed from the igneous rock granite. It has streaky look because of alternating layers of minerals. It often glitter because it contains the mineral mica. It is used for construction purposes. Okay, gneiss जो है ये भी एक तरीके से आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है. ठीक है, ये ग्रेनाइट से बनता है. इसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए ही. ठीक है, इसमें एक मटेरियल होता है जिसका नाम है मिका. Quartzite. Quartzite is formed from the sedimentary rock sandstone. It is a very hard stone. It is mainly used for construction, flooring, ornaments and in glass industry. Okay. Quartzite जो है ये एक sedimentary rock से form होता है जिसका नाम है sandstone. ठीक है, ये construction के लिए, flooring के लिए या फिर ornamental यूज के लिए यूज किया जाता है और इसको ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है. रिसर्च स्केल. Mohs scale is a way of ranking the hardness of rocks and minerals based on how easily they can be scratched. Okay, जो Mohs scale है ये एक वे होता है जिससे आप किसी भी रॉक का हार्डनेस को मार्क कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं. ओके, अब देखिए स्लेट, मार्बल, गिनीज एंड क्वार्ट्जाइट किस तरह से दिखते हैं देख सकते हैं. क्रेजी फॉर एक्टिविटी. यस, हु एम आई? I have fine grains of mud and clay. My parents were metamorphosed so that I could be used for making blackboard. Who were my parents? I am very hard and I am made of sandstone. ये आप खुद से करेंगे. Minerals. Minerals are the natural occurring chemical substances which may have a simple or a complex form. They are usually solid and have crystalline form. Each mineral has its own specific appearance and chemical composition. They are abundant in rocks and are of two types, metallic and non-metallic. Okay, देखिए minerals जो होते हैं वो naturally chemical substance होते हैं जो कि naturally फॉर्म होते हैं. ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. ये यूजुअली सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स. द मिनरल्स फ्रॉम विच सर्टेन मेटल्स कैन बी extracted are called metallic minerals. Rocks containing metals that can be extracted are called ores. Some ores and metals obtained from the minerals are precious metals like gold and silver
are also extracted from ores. These metals are widely used in jewelry, electrical appliances, utensils, construction, coins and coaches of trains. देखिए, मिनरल्स जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं, मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेटेलिक मिनरल्स. रॉक्स जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओर्स. ओके, ये जो मेटल्स और ओर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं मिनरल से, इनसे हम प्रेशियस चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के कुछ ओर्स होते हैं जिनसे हमें ये वाले मेटल्स मिल सकते हैं. ठीक है, अब इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? इनसे हम ज्वेलरी बना सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉइन्स, या फिर आपके जो ट्रेन के कोचेस होते हैं वो भी इनसे बनते हैं. ठीक है, और मेटल ऑब्टेन्ड: बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, हेमेटाइट, आयरन, पायराइट, कॉपर, कैलामाइन, जिंक. नॉन मेटेलिक मिनरल्स: the mineral sources which do not contain metals are called non-metallic minerals. Potassium, phosphorus, limestone, gravel, oil, coal and petroleum are some common non-metallic minerals. Okay, देखिए, कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिनसे आपको मेटल नहीं मिलता, जिनमें मेटल, जो कि मेटल कंटेन नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स. जैसे कि पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेव, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. Uranium is a non-metallic mineral used to produce nuclear energy. Some minerals like diamond, topaz, emerald are found in the form of crystals, are called gemstones. They are used to make jewelry. They can be used as fuels and in construction materials. देखिए, कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूरेनियम. ठीक है, कुछ मिनरल्स जैसे कि डायमंड, टोपैज, एमरल्ड, इनका हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए. ठीक है. कोल: coal is a hard black colored rock like substance. Coal has been used as fuel thousands of years. Coal is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. After dying, plants and dense forest got buried under the marshy region and started to decay. Okay, देखिए, कोल जो है हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक होता है कलर में, इसे यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे. ठीक है, कोल जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिके होता है उससे फॉर्म होता है. ठीक है, अब देखो, विद टाइम न्यू वेजिटेशन ग्रू ऑन द सरफेस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड. Due to heat and pressure over millions of years, they get converted into coal. Hence, it is known as a fossil fuel. The term fossil originated from the Latin word fossils, which means obtained by digging. Okay, देखिए, जो भी हमने पढ़ा, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स जो डिके हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, वो डिके हो जाते हैं, वो सालों तक धरती के नीचे दबे रहते हैं, और जब वो सालों तक दबे रह जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? कोल फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है. ठीक है, अब जो फॉसिल्स होते हैं, ये इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है, और फॉसिल जो है ये एक लैटिन वर्ड फॉसिलिस से हमें मिला है. ठीक है, जो कि हमें ऑब्टेन होता है डिगिंग के थ्रू. ठीक है, तो these huge deposits present all over the earth became coal mines from which fuels are extracted and used. In India, coal mines are situated in Raniganj, Dhanbad and Neyveli. Coal is used to run steam engines in steel industries, for cooking food and many other purposes. Coal occurs in 4 different forms. Okay, देखिए, कोल जो है आपको मेनली कौन कौन से एरियाज में पाया जाता है? रानीगंज, धनबाद, नेवेली. इसका यूज किया जाता है स्टीम इंजन्स चलाने के लिए, स्टील इंडस्ट्रीज में, कुकिंग के लिए, और काफी सारे पर्पसेस है जिसके लिए हम इसे यूज करते हैं. ठीक है, अब कोल जो है 4 डिफरेंट फॉर्म्स में अकर करता है. कौन कौन से? पीट. Peat gives a much less amount of heat on burning. It was the earliest type of coal to be formed. Okay, peat जो है वो less amount of आपको burning देता है. ठीक है, ये सबसे पहला जो था मेथड था जो कि फॉर्म हुआ था. ठीक है,
Lignite, also called the brown coal, is a soft and brownish black coal. It makes the largest portion of about the total coal reserve in the world. Okay, lignite जो है ये brown coal होता है और ये देखा जाए तो वर्ल्ड में largest portion cover करता है. ठीक है. Bituminous, also called the soft coal, gives a lot of smoke on burning. Okay, bituminous जो है इसे हम soft coal कहते हैं और जब हम इसे burn करेंगे सबसे ज़्यादा smoke आता है इससे. ठीक है. Anthracite, also called the hard coal, is the best coal. It gives the large amount of heat with every little smoke on burning. Okay, देखिए एंथ्रेसाइट जो है ये हार्ड कोल होता है और ये बेस्ट कोल माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट मिलती है इससे. अगर हम थोड़ा जलाएंगे तो इससे हीट ज़्यादा मिलेगी, इसलिए इसे बेस्ट माना जाता है. ओके, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज्ड in the world today comes from petroleum and natural gas. Petroleum is also a fossil fuel which is used in its various forms like petrol, diesel and kerosene oil. Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. With time, sand, small stones and other sediments covered them. Under excessive heat and pressure conditions they turn into petroleum. Okay, देखिए आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है उसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम की यूज़ कर रहा है और नेचुरल गैस की यूज़ कर रहा है. ओके, पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल ही माना जाता है. कहते हैं कि मिलियन ईयर्स पहले जो भी आपके जैसे कि एनिमल्स जो कि पानी के नीचे रह रहे थे या प्लांट्स जो थे उनके ऊपर सेडिमेंट्स जो थे आके लेयर्स पे लेयर्स बना रहे थे जिसकी वजह से हीट का जो है वो प्रेशर बना और टाइम टू टाइम ज़्यादा होने के बाद उसके जो प्रेशर बना नीचे का जो एरिया है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल बोला जाता है. Then it is obtained by drilling holes called oil wells into the earth's crust. Most of these are found near the Gulf of Mexico. In India, petroleum is obtained from Ankleshwar, Gujarat, Digboi, Assam and Bombay High, Mumbai coast. Petroleum is used as fuel for running vehicles. It is also used for making lubricant oil, printing ink, medicines and for dry cleaning. Paraffin wax obtained from it is used to make polish and candles. Okay, देखिए अब ये फॉसिल फ्यूल बन गया तो इसे हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑयल वेल्स के थ्रू जिन्हें डिग किया जाता है और उसके बाद उसको ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, अब ये मोस्टली पाया जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में. इंडिया में अलकेश्वर जो कि गुजरात में है, डिगबॉय असम में है और बॉम्बे हाई जो कि मुंबई कोस्ट पर है. तो इन एरियाज में पेट्रोलियम पाया जाता है. ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ हम क्यों करते हैं? हम व्हीकल्स को मूव करने के लिए पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं. ठीक है, ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग इंक, मेडिसिन या फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है. ओके, जनरल नॉलेज. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड लिक्विड सनलाइट. इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन गल्फ कंट्रीज. पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड, लिक्विड सनलाइट भी बोलते हैं. ठीक है, ये मेन सोर्स है लोगों की इनकम का. कहाँ पे? गल्फ कंट्रीज में. ओके, एनवायरमेंटल लिटरेसी. कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स. Nature provides us with numerous resources, coal, metals and oil. Take millions of years to form, therefore they are called non-renewable sources of energy. The supply of energy from these sources is limited. Once consumed, they cannot be replenished again very quickly. So we must try to conserve these resources by utilizing them efficiently and avoiding wastage. We must use renewable resources of energy like biogas, solar energy, wind energy and water energy. They are unlimited and non-polluting. देखिए, क्योंकि ये वाले जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये जो है हमें नेचर से मिलते हैं और नेचर सालों में जा कर के इन्हें फॉर्म कर पाता है. तो इस तरीके के जो हमें प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं नेचर से, इन्हें हमें सेव करना चाहिए. ठीक है, इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. इनकी जगह हमें कुछ और चीज़ें जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी नहीं करती, जैसे कि बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी. ओके,
Crazy for activity? Yes. Given below are a few uses of minerals. Identify the minerals and give another use of it. ये आप खुद से करेंगे. Read at a glance. Our earth is composed of rocks present in different forms like mountains, canyons and riverbeds. Rocks are formed because of cooling or solidification of magma are called igneous rocks. Rocks that are formed when sediments are deposited as layers on earth's surface or within large water bodies are called sedimentary rocks. Rocks that are formed when igneous, sedimentary and pre-existing metamorphic rocks are transformed into different kinds of rocks because of great heat and pressure are called metamorphic rocks. Minerals are of two types, metallic and non-metallics. Coal is a fossil fuel which is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. Coal and petroleum are fossil fuels which take millions of years to be formed. Petroleum is also a fossil fuel which is formed from the remains of aquatic plants and animals. It is our duty to use the natural resources cautiously to protect them from the future generations. Key terms to know. Rocks, mixture of minerals, igneous rocks, rocks formed by the solidification of molten rock materials, lava, molten rock that flows out of the volcanoes. Sedimentary rocks, rocks formed by the deposition of sediment consisting of rocks, sand and remains of plants and animals. Metamorphic rocks, rocks formed as a result of transformation of igneous and sedimentary rocks. Minerals, naturally occurring chemical substances. Metallic minerals, minerals that yield metals. Non-metallic minerals, minerals that do not yield metals. Fossils, remains और impressions of a plant that exist in the past. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.